Hello everyone, welcome back. As you all know that I have already entered my 9th month of pregnancy and it's time to get ready. So one thing which is really important to get ready for the hospital is the hospital bag. So this suitcase is Delisha's suitcase which I have used as the baby's hospital bag. So today I'll be sharing with you all guys what all I have kept in this suitcase for the baby, and a checklist which I have really pondered over, and as this is my second time, so I'm really confident that what is required and what is not required, because first time हमको नहीं समझ में आता है कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है. There were a lot of things जो मैं पहली बार जब हॉस्पिटल में गई थी तो मैंने सोचा कि काश मैं ये लेके आती, and this was required. And but this time I know what all is required in the hospital for 3 or 4 days. और फिर घर आने के बाद तो हम सभी चीज़ अवेलेबल हो जाती है हमें. Also I'm little conscious this time because these are the COVID times and I don't want anything from outside to come and enter the room, and I wanted to prepare beforehand everything so that all the products, all the clothes, everything is washed properly, and then only I have packed up the suitcase for the baby number 2. So let's start the video and let's see what all is there inside it. So starting with the first thing, which is the best and the cutest part of the hospital bag, are the clothes of the newborn baby. So I have ordered like these onesies. These are 6 of them I have. There are printed ones as well, like this one here. So these onesies are really important because आप जब भी बेबी बहुत छोटा होता है उसका अगर आप टॉप और पैंट्स पहनाते हैं तो वो पीछे से बार बार ऊपर हो जाता है. सो ये जो रहता है, अगर आप स्पेशली हॉस्पिटल्स में डायपर ही यूज़ करते हैं तो ये वनजी बहुत हेल्पफुल होता है. इसमें पीठ खुली नहीं रहती है, कवर्ड रहती है पूरे टाइम. सो दीज आर रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग डेलिशाज टाइम. ये मुझे समझ में आया कि ये कितने हेल्पफुल होते हैं. सो आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ देम. I have packed this white plain one as a inner and 1 or 2 printed ones. आप वंजी, जैसे अगर आपके पास इस टाइप का वंजी है, अगर आपके पास ये वंजी है, आप इसके साथ इस टाइप के पजामाज भी टीम अप कर सकते हैं. These are really cute pajamas जो आप वंजी के ऊपर पहना सकते हैं. तो मैंने 7 to 8 सेट्स रखे हैं कपड़ों के, बिकॉज यू डोंट नो, यू नेवर नो कि क्या लगता है. सो इस टाइप के पजामीज़ हैं जो मैंने 5 to 6 रखी हैं, छोटी छोटी पजामीज़. आप इस तरह के फुल स्लीव्स के टॉप और टी शर्ट्स भी कैरी कर सकते हैं साथ में. जो वंजी अगर आपकी हाफ़ है, अंदर बनियान जैसा कुछ पहना रहे हैं, तो आप उसके ऊपर सेकेंड लेयर कॉटन आपको ये ज़रूरी है पहनाना बेबी को. दिस इज़ अ बेबी पिंक, अ वेरी क्यूट बेबी पिंक विच सेज टाइनी लिटिल यू, एंड दिस इज़ रियली क्यूट thing, and it has buttons here on top. So for the newborn it's really important कि आप इस टाइप के ओपन बटन वाले जिससे आपको हेड और पहनाने में बहुत इजी हो, तो आप प्लीज़ ये ध्यान देके चूज़ करें कि किस टाइप की क्लोथिंग आप ले रहे हैं. If it's a baby girl, then this is a homecoming dress for her. This is the top and this is a pajama with it. So this is cute little very small pajama. Maybe ये कैमरा में बहुत बड़ी दिख रही है, but ये बहुत छोटा साइज़ है. This is 0 size. And if it's a boy, then this pajama and this cute little t-shirt. Again, it has buttons over here on top so that it's easy for us to make them wear the clothes. And yeah, तो ये छोटू सा टी शर्ट है और ये पजामा है. So if it's a boy, this is the homecoming dress, and if it's a girl, then this is the homecoming dress for the baby. So ये थे फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर ऑफ क्लोथिंग जो बेबी को रिक्वायर्ड होते हैं. उसके बाद according to the weather the layers goes on increasing or changes. So I have kept 2 type of sweatshirts, kind of this is actually Delisha's. So ये डिज़नी का है. ये दोनों ही एक बहुत सॉफ्ट कपड़े के हैं और बहुत ज़्यादा वूल भी नहीं है इसमें, वुलन भी नहीं है. सो ये कुछ जैकेट्स एंड ऑन टॉप लेयर है. न्यूबॉर्न्स के लिए यू नीड दिस टॉप लेयर. I have kept these 2 set of woolen also for the sake of, this is blue and this is pink.
So if it's a girl, then this is the one. If it's a boy, then this is the one. ये market में मिलते हैं. This is a full set mittens and booties with the top. So this is, let me show you. This is a very cute one. This is a pink one and it's a very cute one. So this is full sleeves and this is half sleeves, whatever is required. Let's see. Clothing में one more thing which is really important is the caps, because newborn को caps mandatory होती है पहनाना. So I have few caps already with me. Like these are cute little caps I have. I love mommy, welcome to the world. So these are really soft caps which I have for the baby. So I have packed around 4 or 5 of them. A lot of mittens and booties, because generally hands, अगर बच्चे के nails बड़े होते हैं तो they scratch themselves, और पैर भी ठंडे हो जाते हैं. Generally hospitals में AC रहता है. So these are the cute little booties and a lot of mittens. Also I have ordered socks, cotton socks, जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, बट अगर जब उसका वेट करूँगी तो आई डोंट थिंक सो ये वीडियो बहुत लेट हो जाएगा. सो बेसिकली बेबी क्लोथिंग में कुछ 8 to 9 सेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, एंड स्पेशली द फर्स्ट डे एंड द होम कमिंग इज़ फिक्स्ड. बीच में बहुत सारे रैंडम रखे हैं. सो पैकेट फर्स्ट डे के लिए अगर बेबी बॉय होता है तो ब्लू एंड बेबी गर्ल होती है तो पिंक. आई हैव ऑलरेडी केप्ट इट एंड आई शोड यू द होम कमिंग ड्रेस फॉर बोथ ऑफ देम. For the baby girl or of baby boy. So just the second thing और जो next thing आती है, that are diapers, because आजकल hospitals में you have to carry your own diapers. Some of them they do provide, but newborn के लिए you have to carry the newborn diapers. I've already ordered. I am just sharing the picture here for the ones which I've ordered. They are Pampers Active Baby diapers. I've used these for Delisha also, and they're very very soft for the newborn skin. और मैं इससे बहुत satisfied थी. तो without doubt I have ordered these packet and this is yet to come. Yes, this is really important. These are the baby wipes, और ये बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में भी और घर पे भी आने के बाद. घर पे आप अगर कॉटन क्लॉथ यूज़ करना चाहते हैं वाइप्स के लिए तो आप वो सब कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल में ये बहुत हैंडी होता है. These are the baby wipes. Actually I love the Chiku ones, but they couldn't be delivered on time, so I did not order, but I will definitely order the next pack, क्योंकि उसमें जो ऊपर का जो बॉक्स ओपनिंग वाला है एरिया, उसमें वाइप्स ड्राई नहीं होते हैं. ये वाला जो ओपन करके स्टिकर है वो स्टिकीनेस ख़त्म हो जाती है और फिर ये बहुत जल्दी वाइप्स ड्राई हो जाती हैं. तो मैं चीकू वाला ऑर्डर करूँगी, बट फॉर जस्ट हॉस्पिटल सेक फॉर 3 days आई एम गोना कैरी दिस बेबी हग प्रीमियम बेबी वाइप्स. ऑल्सो दिस थिंग आई एम नॉट गोना कैरी इन द हॉस्पिटल बैग, बट बस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि हॉस्पिटल बैग तैयार करने के लिए हमने इसको यूज़ किया था. सो दिस इज़ लिक्विड डिटर्जेंट, laundry detergent for baby from again baby hug. So I will suggest you guys कि बेबी के जो क्लोथ्स होते हैं न्यूबॉर्न के क्लोथ्स वो आप बेबी डिटर्जेंट में वॉश करें, या अगर आप ये नहीं प्रेफर करना चाहते हैं तो आप जेंटल या इजी जैसे लिक्विड हैंड वॉश से यूज़ करें, लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पे टच होगा. तो अगर बहुत हार्श डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं तो वो एलर्जी भी हो सकती है. सो वी हैव यूज दिस टू वॉश ऑल द क्लोथ्स बिफोर वी पैक्ड. For the next thing, I have ordered this wash clothes. This is a pack of 8 wash clothes. छोटा सा हैंकी टाल जैसा होता है, बहुत छोटा सा होता है ये. ये बेसिकली बच्चे के मुंह पोंछने के लिए, या जैसे बच्चा कभी दूध गिरा देता है या बर्प करता है तो कभी कुछ, तो ये वॉश क्लोथ्स बहुत सॉफ्ट और बहुत कॉटन के बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे होते हैं. ये आपको रखना चाहिए अपने हॉस्पिटल बैग में, कभी भी काम आ सकता है. सो ये मैंने पैकेट पूरा रख लिया है. इट्स अ पैक ऑफ 8 वॉश क्लोथ्स. मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव पैक्ड अप दिस ब्लैंकेट. दिस इज़ अ बेबी ब्लैंकेट एक्चुअली. बहुत कोजी है, आपको पता नहीं कब मौसम बदल जाए, एंड यू नो यू हैव टू फॉर द सेफर साइड आई एम कीपिंग दिस ब्लैंकेट. नेक्स्ट थिंग इज़ द ड्राई शीट्स. दीज आर ड्राई शीट्स. ये आजकल मार्केट में मिलता है. जनरली पहले रबर यूज़ होते थे, सो ये मैंने सेफर साइड के लिए 2 रख लिए हैं. द नेक्स्ट इज़ बेबी स्टाल. सो आई हैव 2 of them. So basically this is a pink one. It has a hoodie like this ऐसे, और ये फिर पूरा टावल जैसा है.
So this is also very very soft cloth, and this is one blue, so it also has a hoodie and it is quite big. Forward, I have packed these two muslin clothes. So these are like really cute. They have some embroidery here on top of them, a ladybug and a bee, I think. So ये एक बहुत बड़ा cloth है. It's a plain white cloth basically with this embroidery like this. So ये जनरली बेबी को रैप करने के लिए, स्वैडल करने के लिए काम आता है, और हॉस्पिटल वाले ये ज़रूर मांगते हैं. आप मसलिन या कॉटन कोई भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल का क्लॉथ रख सकते हैं. सो देयर आर फॉर स्वैडलिंग द बेबी. सो आई हैव केप्ट 2 of these, and I got a set of 3. So ये 1, 2 and this 3. So set of 3. They are also very very soft material cloth. So this was all which was required during the hospital stay. अगर आप normal होते हो तो 2 days में आप hospital से discharge मिल जाता है. अगर आपका C-section होता है तो it may take 3 or maximum 4 days. So ये सारी चीज़ें आपको लग सकती हैं. So for the safer side you can keep everything. अब बात आती है homecoming की. So for the homecoming, I have ordered something and I already had one. So this one I have ordered. If it's a boy, then this is the thing. ये 2 legs हैं और ये ऐसे खुल जाता है इस टाइप का. अंदर इसका बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, और ये हुडी है ऊपर इसमें, और ये इस टाइप का है. आप बेबी को इसके अंदर ऐसे रैप कर सकते हैं. नीचे से ये टोज़ है, थोड़ा सा बड़ा होगा न्यूबॉर्न के लिए, बट येस इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी फॉर द कमिंग विंटर्स. सो इस टाइप से आप अपने बेबी को ला सकते हैं. सो दिस इज़ इफ़ इट्स अ बेबी बॉय, एंड दिस इज़ फॉर द बेबी गर्ल. सो इट इज़ अ डिफरेंट टाइप. ये थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल भी है, वो थोड़ा वुलन में है. ये अगर ज़्यादा सर्दी नहीं होती है तो ये इस टाइप का मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है ये भी. इट्स अ काइंड ऑफ मोटा ब्लैंकेट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो आप इसको ऐसे रैप कर सकते हैं और ये पूरा ऐसे बैग जैसा बन जाता है. इट हैज़ अ बेल्ट ऑल्सो. सो दिस इज़ दीज 2 things I'm gonna keep for the homecoming. Boy, girl, I don't know what. But yes, ये Delisha का है, and that's why I bought a blue one this time for a change, because everything what I had was pink. So I don't know if it's a girl again, then it might be used. So ये कुछ 2 का पेयर था. This is one more polka dots red वाला. Again the same hoodie and this. ये 2 का सेट आया था. I will put the link in the description box with the price. So this was really helpful. I think मैंने Amazon फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था. सो अदर देन दीज स्टफ़ आई थिंक 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं. अगर हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपको इलेक्ट्रिक केटल बहुत बहुत हेल्पफुल होगी. एक थर्मस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक छोटा सा चम्मच और एक कटोरी रख सकते हैं आप साथ में. कभी कभी बेबी को टॉप फीड देना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें, सो दैट लास्ट मोमेंट पे इधर उधर जाना ना पड़े. सो ये सब चीज़ें थी जो बेबी से रिलेटेड थी इस वीडियो में. सो गाइस, दिस वाज ऑल व्हाट आई हैव इन माय हॉस्पिटल बैग, एंड आई होप this list is really helpful for you to pack your own hospital bag or give suggestions to your friends or families. Share this video as much as you can. So guys, I'm ready for the hospital and this bag is ready with me. See you guys soon, and wish me luck, and see you soon. Signing off, Vani. Bye bye.